Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Learn English with Saleha. My dear viewers, today we are going to discuss about the pairing scheme and the model paper of class 9th English subject. And in today's video, we will also discuss the important points कि किन किन चीज़ों का आप लोगों ने केयरफुल रहना है कि पेपर किस तरह से एक अच्छा पेपर हम अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड माइट बी पॉसिबल क्योंकि ये गवर्नमेंट का मॉडल पेपर है तो ये उम्मीद की जा सकती है कि 30 to 40% पेपर इसमें से आ जाएगा इसलिए यू हैव टू वॉच द कंप्लीट वीडियो and then you will understand all the important concepts and that we discuss about the paper pattern and the pairing scheme. Okay, so here is the model paper class 9th. Here you can see English compulsory paper 1 objective type. Okay, ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोगों के स्टूडेंट्स टाइम अलाउड विल बी 20 मिनट्स इन 20 मिनट्स यू हैव टू कंप्लीट द बबल्स प्रॉपरली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द बबल्स कि आप लोगों ने जब भी बबल फिल करना है इट शुड बी completed विद द ब्लू और द ब्लैक मार्कर ले लें या पॉइंटर ले लें तो आप लोगों का जो बबल है वो कंप्लीट फिल होना चाहिए यानी ना बबल वो बाहर आए ए बी सी डी या जो आप ऑप्शन करेक्ट करोगे और ना वो बिल्कुल एक डॉट हो एंड डोंट टिक उस पर टिक नहीं करते उस बबल को प्रॉपर आप लोग फिल करते हो जैसे आप लोग स्कूल में प्रैक्टिस करते हो इस बात का खास तौर पे आप लोगों ने ध्यान रखना है क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो आप लोगों की ये चेकिंग है एमसीक्यूज की और ऑब्जेक्टिव टाइप की वो कंप्यूटराइज्ड होती है और अगर ज़रा सा भी आप लोगों का उस डॉट से बाहर आ जाए या उस सर्कल से पूरा सर्कल फिल ना हो तो आप लोगों के एमसीक्यू रॉन्ग हो सकते हैं. So the most important thing about the objective type that you have to fill the complete circle with the blue or the black ink, right? So next here you can see the question number 1. Choose the correct form of verb and fill up the bubble sheet. This question carries 5 marks. जैसे हम पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि आप लोगों का ए पार्ट कहाँ से आएगा, पार्ट बी कहाँ से आएगा, पार्ट सी के एमसीक्यू कहाँ से आएंगे और पार्ट डी के एमसीक्यू कहाँ से आएंगे. ओके, तो आप लोग अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो यू कैन चेक द प्लेलिस्ट एंड आप चैनल में भी चेक कर सकते हो जो आपको रिक्वायर्ड है. वो मॉडल पेपर था, पेपर पैटर्न स्कीम थी और आप लोगों को पता चल जाएगा कि फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट के एमसीक्यू कहाँ से आएंगे. सो द हियर यू कैन सी द गर्ल्स डैश नेट बॉल. अब इसमें से आप लोग ऑप्शंस देख लें, आर प्लेइंग, इज प्लेइंग, प्लेइंग, हैज प्लेड. तो द गर्ल्स here you can see are playing netball. ठीक है, प्रेजेंट टेंस है. It dash to rain an hour ago. An hour ago mean ये past की बात है. So it began to rain an hour ago. B option is tick. So you will fill the B bubble. Then they dash Pakistan before the end of the years. This is also about past and end of the year. They will have left Pakistan before the end of the year. A option is correct. Then it dash in winter. And the option is rain, rains, raining, and are raining. So it rains in winter. यानी सर्दियों में बारिश होती है. It dash since last night. So since mean this is perfect continuous tense. So here you can see options are is raining, had been raining, and have been raining, and will be raining. So it had been raining since last night. क्योंकि past की बात है इसलिए यहाँ had आएगा, have नहीं आएगा. यानी पिछली रात से बारिश हो रही थी. So choose the word with correct spelling and fill up the bubble sheet. This question carry 4 marks. ये आप लोगों के बुक से ही आएगा. You have to choose the correct chaos spelling. So the B option is correct. CHAOS, chaos. Then is beacon and beacon. So the right option is D. BEACON, beacon. जैसे beacon house होता है. And then appreciate spelling, you have to pick the right option and the right option is B. APPRECIATE. Then number 9 MCQ, correct spelling of prosperity. And the correct spelling is PROSPERITY. The A option is correct. So you will fill the bubble A option. Students, कभी भी दो अगर आप लोगों को समटाइम्स आप एक ऑप्शन टिक कर देते हो, सॉरी फिल कर देते हो और बाद में अगर आपको फील हो कि जी ये रॉन्ग थी, मैंने तो ये वाली करेक्ट थी,
फिर आप छोड़ दें, क्योंकि अगर आप 2 बबल्स फिल करोगे तो फिर भी वो आप लोगों का रॉन्ग ही जाएगा। ठीक है? You have to fill only 1 bubble at a time. Then choose the correct meanings of the underlined word and fill up the bubble sheet. So commendable is admirable. B option is correct. And the word render mean पेश करना. So the refer, refuse, retrain, perform, इसमें से भी आप इसकी right option tick करोगे. The word crucial mean important, social, initial, vital and optional. So vital is important. Then hearth कहते हैं चूल्हे को, fireplace, palace, ditch, nest. So fireplace is correct. And then Mrs. Slater looks bigod. So you have to take the right option. Okay. Then part D is she reads a book. This sentences. अब ये simple sentence है. She reads a book. वो एक किताब पढ़ती है. इम्पेरेटिव क्या होता है? जिसमें कोई ऑर्डर किया जा रहा हो. कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें एक से ज्यादा, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो. कंपाउंड भी इसी तरह से, उसमें 2 से 3 सेंटेंसेस होते हैं. दिस इज क्वाइट सिंपल सेंटेंस. शी रीड्स अ बुक, वही किताब पढ़ती है. सो दैट्स व्हाई दिस इज द सिंपल सेंटेंस. ओके. Happiness is important for life. So what is happiness? Is this the noun, an adverb, an adjective or pronoun? अब यहाँ पर happiness है खुशी. This is a noun. यहाँ पर happiness as a noun use हो रही है. So the A option is correct. This book is mine. So the underlined word is a reflexive, possessive, distributed, indefinite. So possessive क्योंकि ये किताब मेरी है, possession है, इसमें मलकियत शो हो रही है. So the right option is B. Then Sheila sang beautifully. The underlined word. अब beautifully क्या है? Adverb of place है? No. Adverb of manner है? Adverb of time है? या adverb of frequency? Beautifully mean बड़ी खूबसूरती के साथ. So the right option is adverb of manner. B option is correct. And then reading is my hobby. The underlined word. Again reading क्या है? Is this the verb, infinitive, gerund और auxiliary? So reading, जैसे आप लोगों को मैंने previous वीडियो में भी बताया था कि reading is the, अगर reading as a noun यूज हो रहा है तो that is the gerund. Okay students, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, all the playlists are available, all the grammar concepts are available, so you can subscribe my channel. And then we have the second subjective part. Okay, so this is essay type. Time allowed is 2 hours and 10 minutes and maximum marks is 56. Here you can see the section 1. स्टूडेंट जो पहली पेपर स्कीम थी वो इससे थोड़ी सी यहाँ से डिफरेंट थी. इसमें सिर्फ ए पार्ट ही होता था. अब यहाँ पर उन्होंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये बी पार्ट उन्होंने पिक किया है डियर डिपार्टेड, जो आप लोगों की बुक का लास्ट यूनिट है. डियर डिपार्टेड जो प्ले है वो कंपलसरी कर दिया है. ठीक है, बाकी सारी बुक से जो आप लोगों के स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है चैप्टर, उन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे. और यहाँ पर डियर डिपार्टेड में से दे विल गिव यू 2 क्वेश्चन एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन. बट रिमेंबर दैट ये जो आपने 1 अटेम्प्ट करना है, इट शुड भी थोड़ा सा ये लॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि इट कैरीज 4 मार्क्स. अगर आप बिल्कुल 2-3 लाइन्स लिखोगे तो यू विल नॉट गेट फुल मार्क्स. 4 मार्क्स तभी आएंगे जब एटलीस्ट 5 to 6 लाइन्स होंगी उसकी. इससे कम लाइन्स नहीं होनी चाहिए. और ये वाला जो है ये आप लोगों का 2 मार्क्स का ही है. व्हाट काइंड ऑफ कंपटीशन वाज हेल्ड एट ओकाज एवरी ईयर? हर साल ओकाज में किस चीज़ का मुकाबला होता था? व्हाई डू यू थिंक आइडियाज मोहम्मद अली जिन्नाह's efforts were crucial in securing a separate homeland? And then who is awarded Nishan-e-Haider in Pakistan? And how does quality education promote understanding and tolerance? And why is STEM education important for driving innovation? आप लोगों ने स्टूडेंट्स फिर भी ये सारे क्वेश्चन स्टडी कर लेने हैं. माइट भी पॉसिबल कि इसमें से 30 to 40% आ सकता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से मॉडल पेपर है, तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस याद करने हैं. ओके, and then answer any one of the following question. They have give you one. How does the conflict over Mr. Merriweather's possessions drive the plot of the play? What does this conflict reveal about the character's values and priorities? अब उन्होंने कहा कि जो कॉन्फ्लिक्ट था मिस्टर मैरीवेदर्स की पोजेशन के बारे में, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में, वो प्ले में क्या था और वो किस चीज को शो कर रहा था? करेक्टर्स की इकदार के बारे में, उनकी तरजीहात के बारे में.
इन व्हाट वेज डज स्टैनली हाउटन यूज सटायर? सटायर कहते हैं तंज को। टू क्रिटिसाइज फैमिली के, उसने किस तरह से फैमिली को तनकीद की और क्या उनकी सोशल वैल्यूज थी और किस तरह से उसने अपना मैसेज कन्वे किया। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर ये चेंजिंग आई है सिर्फ, बाकी सारा वही पुरानी वाली पेपर स्कीम है। उन्होंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये वाला पार्ट आप लोगों का प्ले का 4 मार्क्स का है और बाकी में से आप लोगों ने यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 3 और ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। 6 मार्क्स इसके हो गए और 4 मार्क्स 10 मार्क्स हो गए, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया। Okay, next we have the section 2. Translate any two of the following paragraphs into Urdu. Yeah, rewrite any two paragraphs into simple English. Students, one more important thing about the simple English is that कि अगर आप लोगों की ग्रिप है, आपको सारे वर्ड्स के सिनोनिम्स आते हैं, जैसे पेट्रियोटिज्म का सिनोनिम क्या होगा, मदरलैंड का सिनोनिम क्या लिखोगे, डिवोशन का सिनोनिम क्या लिखोगे, देन यू शुड प्रेफर द सिंपल इंग्लिश। ठीक है, तब आप अटेम्प्ट करना सिंपल इंग्लिश। लेकिन अगर आपको इन वर्ड्स के सिनोनिम्स नहीं आते, इसको आप सिंपल फॉर्म में नहीं कर सकते, तो फिर आप लोग इसको उर्दू में ही ट्रांसलेट करो। क्योंकि समटाइम स्टूडेंट क्या करते हैं, वो पूरी वैसे डिटो कॉपी नीचे लिख देते हैं, दैट इज रॉन्ग, और पूरे आप लोगों के 8 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगर सिंपल इंग्लिश तब करना अगर आपको सारे वर्ड्स के सिनोनिम्स आते हैं, और अगर आपको सिनोनिम्स नहीं आते तो फिर आप इसको कोशिश करो कि आप उसको उर्दू में सारा पैराग्राफ ट्रांसलेट करो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट व्हेन यू आर राइटिंग द उर्दू सेंटेंसेस के पूरा सेंटेंस पहले आपने माइंड में उसके मीनिंग्स लिखने हैं। जैसे पैट्रियोटिज्म मीन लव फॉर द मदरलैंड, अब आप ये नहीं लिखोगे कि हुब्बे वतन का मतलब है मोहब्बत वतन के साथ, दैट इज रॉन्ग। आप लिखोगे हुब्बे वतन से मुराद अपनी मादरे मिल्लत से मोहब्बत है। ठीक है, इस तरह से प्रॉपर अपने माइंड में पहले उसको सेंटेंस को प्रॉपर बनाओ, फिर आप उसको पेज पे लिखो, अपनी शीट पे लिखो। अगर आप एक वर्ड तोड़ तोड़ के लिखोगे, जो वर्ड होगा उसका मीनिंग लिखोगे, तो दैट इज रॉन्ग और आपकी पूरी क्रॉस हो जाएगी ट्रांसलेशन। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर राइटिंग। और उर्दू में भी आप लोगों ने अगर मादरे वतन या मुहिब वतन लिखना है तो कोई भी ग्रामर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सही वर्ड लिखना है। ये नहीं कि अगर अलामा इकबाल आइन से या तो आप अलिफ से लिख रहे हो, दैट इज रॉन्ग। ओके, यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ पेट्रियोटिज्म से आया हुआ है। नेक्स्ट लेट मी शो यू समथिंग हिज ग्रैंडफादर, ये वैल्यू ऑफ टाइम है पेबल्स वाला, और ये एजुकेशन के बारे में जो आप लोगों का चैप्टर है यूनिट नंबर 9। ओके, एजुकेशन प्रमोट्स अंडरस्टैंडिंग टॉलरेंस रिस्पेक्ट, और पूरा कोई भी वर्ड आप लोगों ने स्किप नहीं करना ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। ओके, नेक्स्ट वी हैव द समरी, इफ समरी और अच्छा स्टूडेंट्स, समरी आप लोग अगर अटेम्प्ट करते हो एटलीस्ट उसमें कोट्स और स्टैंजास लाजमी लिखें, क्योंकि अगर आप लोग कोट्स और स्टैंजास नहीं लिखते तो वो बहुत शॉर्ट हो जाती है और आप लोग को फिर, वैसे इफ तो शॉर्ट नहीं है, ये तो पोएम ही लॉन्ग है, तो इसकी समरी भी लॉन्ग होगी। ठीक है, ओके, एंड इसके साथ चॉइस में जो आता है पैराफ्रेजिंग द फॉलोइंग लाइंस। और स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द पैराफ्रेजिंग, जो मोस्टली स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि आप लोग सिर्फ इसको एक्सप्लेन करने बैठ जाते हो, दैट इज रॉन्ग। जिस तरह आप लोग उर्दू के पेपर में हवाला मतन, सियाको सबाक और तशरीह लिखते हो, सेम इज द केस विद दिस टाइप ऑफ पेपर। यहाँ पर पैराफ्रेजिंग में पहले आप लिखोगे रेफरेंस, रेफरेंस में आपने पोएम का नेम और पोएट का नेम लिखना है। ओके, देन इन द कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों ने इस पोएम की थीम लिखनी है कि इसका मरकजी ख्याल, इसका सेंट्रल आइडिया, इसकी थीम क्या है, and then you have to explain all these lines in the summary form या in the explanation. ठीक है, reference, context and then explanation, then this part will be completed and it carries 5 marks. And then we have the question number 5. Use any 5 of the following words. They have given embodiment, devotion, parallels, inclusive, emphasize, stupefied, and shabby and malicious. Each sentence carry 1 mark. And write the correct sentence. अगर आप sentence लिख रहे हो तो you have to very careful about s या es, कौन से tense में आप लिख रहे हो। अगर present tense में है तो don't forget to put the s or es. If you are writing in the past tense, then don't forget to put the past indefinite or the second form or the was were. Okay, नहीं तो आप लोगों का जो 1 mark मिलना है वो भी minus हो जाता है। Next, we have the question number 6. Write a letter to your friend congratulating him on the marriage of his sister. Friend, there is a choice among the letter writing, big reward, story writing, and the dialogue writing.
बट आई ऑलवेज प्रेफर दैट यू शुड राइट द लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में क्या है कि 4 मार्क्स आप लोगों के पैटर्न के हैं, जो लेटर पैटर्न होता है, और 4 मार्क्स उसके बॉडी पार्ट के हैं, जो आप बीच में डिटेल लिखते हो। स्टोरी में क्या होता है कि आप लोग रॉन्ग टेंस लिख देते हो, मोस्टली स्टूडेंट जो करते हैं। अगर आप ऑलवेज राइट द स्टोरी इन द पास्ट टेंस, ओके। पास्ट टेंस का मतलब है उसमें यू हैव टू यूज द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और द वाज वर्ब। और मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, कभी प्रेजेंट में चले गए, कभी पास्ट में आ गए, कभी फ्यूचर में आ गए, तो आप लोगों की सारी स्टोरी माइनस में चली जाती है, ओके। और डायलॉग में यू हैव टू वेरी केयरफुल अबाउट द पंक्चुएशन मार्क्स। इफ यू आर आस्किंग जस्ट लाइक अस्सलाम वालेकुम या हाउ आर यू, then if you are asking the question, then you have to put the question mark. If you are explaining different things, then you have to use the commas and the full stops and the punctuation marks, exclamation marks. तो डायलॉग में इन चीज़ों को बहुत आप लोगों ने माइंड में रखना है इफ़ यू आर राइटिंग द डायलॉग, कि उसमें पंक्चुएशन मार्क्स प्रॉपर हो, ओके। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लेटर राइटिंग एंड लेटर में। फिर भी मैं आप लोगों को कहूंगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द लेटर राइटिंग, ऑलवेज स्टार्ट द लेटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द पेज। जैसे ये आप लोगों की शीट है, तो आपने टॉप ऑफ द पेज से स्टार्ट करना है हमेशा लेटर, और कोशिश करें पूरी शीट आप लोगों की लेटर पे, क्योंकि आप लोगों की जो ग्रामर कंपोजिशन में लेटर्स है स्टूडेंट, वो बहुत शॉर्ट है। उतने ये 4-5 लाइन्स लिखने से आपको कभी भी 8 मार्क्स नहीं मिलेंगे। एक आप लोग स्टार्टिंग और एंडिंग इस तरह की याद कर लो कि जो हर लेटर में सूट कर जाए, ठीक है। एंड देन वी हैव द रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। ये कॉम्प्रीहेंशन है, आप सबको पता है, और बिल्कुल इजी आती है। वैसे ये भी आप लोगों की ग्रामर कंपोजिशन से ही आएगी, ठीक है। एंड देन वी हैव द क्वेश्चन नंबर 8, ट्रांसलेट एनी फॉलोइंग ऑफ द सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। स्टूडेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 8 के इसके साथ चॉइस में आप लोगों का आता है दिस: Write 10 sentences about how to keep our town clean. अगर आप लोगों की टेंस पर मुकम्मल ग्रिप है and you can identify the tense and you can use the correct form of verb, then you should prefer to write this translation Urdu to English. लेकिन अगर आप लोगों को टेंसेस नहीं आते तो don't try to do this, you should prefer to do this. राइट एंड सेंटेंसेस अबाउट हाउ टू कीप आवर टाउन क्लीन। टाउन कहते हैं कस्बे को, अपने इलाके को हम किस तरह से क्लीन कर सकते हैं। सो दिस इज क्वाइट इजी, सो ऑलवेज यू शुड प्रेफर टू राइट दिस क्वेश्चन। ये वैसे होता है इंग्लिश मीडियम के लिए, लेकिन आई थिंक सारे कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम तो सभी होते हैं, ओके। अगर आप लोगों को टेंसेस नहीं आते तो यू शुड प्रेफर दैट। देन क्वेश्चन नंबर 9 इज, और आप लोगों को पता है कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, ये भी 5 मार्क्स का है। एंड देन चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। तो वी डिड नॉट हेयर अ साउंड, ये आप लोगों के एक्टिव पैसिव वॉइस है, और इसमें से आप देखें वी शैल हैव किल्ड द स्नेक, वी यूज मिल्क फॉर मेकिंग चीज, ये भी आप लोगों के ग्रामर कंपोजिशन से ही आते हैं। व्हाई वर दे बीटिंग द बॉयज एंड ही विल राइट अ लेटर। Alright students, so we have discussed the important guest paper and the model paper and the pairing scheme of class 9th students. Hope for the best. उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ये सारा कुछ फिर भी बहुत अच्छे तरीके से रेडी कर लेना। माइट भी पॉसिबल कि इसमें से 30 to 40% पेपर आ जाए। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब इट फॉर माई कमिंग अपडेट्स। सो टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।